Hello children, today's video I make assertion reason type questions. Okay, and I explain each and every question with hands. So let's start. As you know, assertion reason type question, there are two parts. One part is assertion and other part is a reason. Assertion I have indicated by the capital letter A and reason capital letter R. Okay, and in this type of question there are four options are there. First option, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. And option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. And third option, assertion is true, but reason is false. And fourth and the last option, assertion is false, but reason is true. Whenever you are going to solve the questions, if the options will be C and D, then you don't have any doubt, very easily you can solve it. But where is the doubt? When the chances of option is A or B, in that case children generally confuse. So children, whenever you are going to solve assertion reason type of questions in any subject, I am asking about physics or bio or chemistry. So first you read the assertion, okay, then you just before seeing the reason, just you think in your mind what is the reason behind this assertion, then very easily you can solve the correct answer. So do the practice. Let's start. I hope after practice everything is possible. So first question, assertion. Calcium carbonate when heated gives calcium oxide and water. This is the assertion. And the reason, on heating calcium carbonate, decomposition reaction takes place. So first you think is assertion is correct. तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बनता है? No. Then what thing form? When you heat calcium carbonate, calcium oxide तो बनेगा, but other compound will be a carbon dioxide, not a water. Okay, so your assertion will be false. ये तुम्हारा assertion यहीं पे wrong हो गया. अब now we will check to the reason, ये सही है या wrong है. And on heating calcium carbonate, decomposition reaction takes place. Yes, decomposition तो होता है. So reason is R is true. Your option will be D. ये तुम्हारा क्या होगा? D option सही होगा. Okay, I hope ये बहुत इजी है. मैंने पहले बताया था कि अगर तुम्हारा ऑप्शन सी और डी है तब तुम्हारे पास डाउट नहीं होता है, क्योंकि कंसेप्ट तो मुझे लग रहा है अभी सभी बच्चों का क्लियर ही हो गया होगा. ओनली 2 months लेफ्ट टू मार्च एंड अप्रैल. यस, 2 months लेफ्ट फॉर योर एग्जाम. तो तुम लोगों ने पढ़ाई तो हो चुका है, अभी रिविजन चल रहा है, तो सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है, मैं ये मान के चल रही हूँ. तो सी डी में ऑप्शन में नहीं है. ए और बी में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी क्या रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है या रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion. Carbon is a versatile element that forms the basis for all living organism and many of the things we use. Yes, ये तो बिल्कुल ही सही है. नाउ अभी रीजन क्या है? The large variety of compounds are formed by carbon because of tetravalency and the property of catenation that it exhibits. ये भी सही है. तो हमारा ये assertion जो है उसके पीछे का रीजन, क्यों कार्बन इज अ versatile element and forms the basis of for all living organism and many of the things. Yes, क्योंकि इसके बहुत सारे, इसके लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड है और सभी का कुछ ना कुछ यूज होता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है और ये उसका रीजन भी है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड बनाता है. So your option will be A. Now next question. Character increases down in the group of modern periodic table. यानी ऊपर से नीचे, when you observe the periodic table, अप से डाउन तुम आते हो तो क्या होता है? इंक्रीज करता है. रीजन है इट अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल एट ईच स्टेप. यस, दोनों ही सही है और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है. सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट.
Now come to the question 4. When HCl is added to zinc granules, a chemical reaction occurs. क्या chemical reaction होता है? हाँ, दोनों को हम chemical reaction कब किसे कहते हैं? जब दो reactant को when you mix प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, वो कम्प्लीटली जो प्रोडक्ट होती है उनकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. यानी कि इनकी वजह से गैस H2 गैस बनता है. क्या होता है? HCl और जिंक Zn प्लस HCl क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 बनेगा. यस, तो ये रिएक्शन भी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. दो जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट है. सो ये केमिकल रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर ए होगा. Question number 5. Covalent compounds are generally low melting and boiling points. Yes, covalent compound का melting और boiling points low ही होता है क्योंकि इनके बीच का जो है बॉन्ड कैसा होता है. रीजन क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. नो, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड तो वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं है. तो इसलिए इसका आंसर सी होगा. यानी कि ये असर्शन तो सही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन रीजन तुम्हारा फॉल्स है. क्वेश्चन 6. HCl produces hydronium ion and chloride ions in aqueous solution. H को जब डिसोसिएट होता है तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन देता है. इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिक गिव्स H प्लस आयन. तो क्या बेस तुम्हारा H प्लस आयन देता है? नहीं, बेस क्या देता है? OH माइनस आयन. यानी कि ये स्टेटमेंट जो है रीजन वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग है. सो अगेन योर आंसर विल बी अ सी. ये पार्ट्स तुम्हारा सही है. HCl जब डिसोसिएट होता है पानी में जब जाता है तो गिव्स H3O प्लस Cl माइनस हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस देता है. ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा गलत हो रहा है. सो ऑप्शन विल बी अ सी. Next question. Pure water is neither acidic nor basic. Yes, pure water तो हमारा वैसा ही होता है, neutral होता है. Reason: the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion on it. तो रीजन भी सही है, लेकिन क्या प्योर वाटर एसिडिक या बेसिक नहीं है? इसके पीछे ये कारण तो नहीं हो सकता ना. प्योर वाटर क्यों एसिडिक? ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है. उसका हम ये आंसर नहीं दे सकते हैं कि pH ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ. ये सेंटेंस सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का ये रीजन नहीं होता है. ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा. अब देखो यहाँ पे H3PO4, ठीक है, H2SO4 आर नोन एज पॉलीबेसिक एसिड. पॉलीबेसिक एसिड किसे कहते हैं? जो कि कितने नंबर्स ऑफ H प्लस आयन देता है? तो ये तो हमारा 3 दे देगा हाइड्रोजन प्लस, और ये H2SO4 2 देता है. यानी ये पॉलीबेसिक है, ये 2 H प्लस देता है और ये 3 देता है. रीजन: दे हैव 2 और मोर देन 2 प्रोटॉन्स फॉर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड. यस, ये दोनों सही हैं और इनका रीजन भी सही है. अंडरस्टूड? मैं फिर भी एक बार फिर से बताती हूँ. पॉलीबेसिक क्या होता है? जो कितने हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन जो देता है. तो हाइड्रोजन प्लस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं. तो दैट्स वाई इसका रीजन क्यों है, क्यों इसे हम पॉलीबेसिक एसिड कहेंगे? बिकॉज दे हैव 2 और मोर देन 2 प्रोटॉन्स फॉर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड. तो यस, सो दैट्स वाई आंसर विल बी अ A. Now the next question: salts are the product of the acid base reaction. ये हमारा रीजन है. और इसके बाद इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्ट में बी एसिडिक और बेसिक. ये दोनों तो सही है. सॉल्ट हमारा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है. और ये जो सॉल्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, ये भी सही है, लेकिन इसके पीछे ये रीजन तो नहीं है ना. सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, ये यस बिल्कुल सही है कि सॉल्ट प्लस एसिड, सॉरी एसिड प्लस बेस वी गेट अ सॉल्ट. लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये अपना अलग स्टेटमेंट है. ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस असर्शन के पीछे ये रीजन नहीं होगा. प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यस, ये नहीं होगा. इसलिए ए बी करेक्ट, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अभी तुमने बहुत सारे ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हैं. असर्शन रीजन में क्या, जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे
उतने अच्छे से तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में तो तुम्हारे आते ही आए नहीं वाले हैं, 2 फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायो से, अबाउट इस तरह से आते हैं। तो यहीं पे ये तुम लोगों के लिए पिछले साल ही 2 सालों से असर्शन रीजन तुम लोगों में ऐड हुआ है। तो 8 में whenever you would be in the 8th standard, that time you didn't solve this type of question, बट अभी पिछले साल से तो कर रहे हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। सो डोंट टेक टेंशन, डू द प्रैक्टिस। और अभी नेक्स्ट डे मैं तुम लोगों को भेजने वाली हूँ फिजिक्स का असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। देखते रहो मेरे वीडियो को, वॉच करो और प्रैक्टिस करो। आई होप बहुत इजीली तुम लोगों का अच्छे से हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।